السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو میں پھر حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ کیا اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشاب پینا سکھاتا ہے۔ یہ ایک واہیات ویڈیو ہے، مطلب کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا، پر یہ ویڈیو میرے سامنے آئی تو میں نے کہا لا اس ویڈیو پہ میں ریئیکشن دیتی ہوں۔ تو چلیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اور پھر آپ لوگ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ جو ایکس مسلم ہیں اکثر اسلام دھرم کو ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں، تو چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کی کیا حقیقت ہے۔ تو اس ویڈیو میں لاسٹ تک ضرور بنے رہیں اور اس ویڈیو کی سچائی دیکھتے ہیں۔ میں امپورٹنس اس کا سمجھ لوں تو مجھے بھی ٹٹی اور پیشاب پینا پڑے گا پھر۔ یہ ہے آپ کا مذہب، یہ ہے آپ کا مذہب۔ اس سے اچھا تو آپ نکل جاؤ، ورنہ پھر پیشاب اور پاخانہ کھانا پڑے گا آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس کی باتوں سے تو آپ کو ایسے سمجھ میں آیا ہوگا کہ اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشاب پینا سکھایا گیا ہے اور پاخانہ کھانا سکھایا گیا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو ابھی آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے کہ اسلام میں فرض ہے، یعنی کمپلسری ہے، جیسے کہ اسلام کے ارکان، پلرز میں سے ہے۔ آج میں آپ کو ایک سیمپل کے طور پر اس ٹاپک پر ایکسپوز کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کس طرح اپنی آڈینس کو بیوقوف بناتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پیشاب پینے کی حدیث ضعیف ہے، غیر ثابت شدہ ہے۔ اس ٹاپک پہ ہر ایک حدیث کی پوری ڈیٹیلز میں آپ کو اس ویڈیو میں آگے بتاؤں گا۔ پاخانہ کھانے کے تعلق سے تو ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، ارادے کے بارے میں ایک حدیث ہے جو ضعیف ہے۔ میرا چیلنج ہے کہ کوئی بھی صحیح حدیث پیش کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کمپینینز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشاب پیا کرتے تھے، پیش کرو، اور ان کی پاخانہ کھایا کرتے تھے، پیش کرو۔ اور اگر نہیں ہے تو پبلک سٹیٹمنٹ دو کہ آپ کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اور اپولوجائز کرو۔ اسلام میں طہارت، صفائی کی بہت امپورٹنس ہے۔ نماز میں جسم پر، کپڑوں پر اور نماز کی جگہ پر کوئی بھی نجاست یعنی کہ گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس گندگی نجاست کی لسٹ دیکھو اسلام میں تو بالکل ٹاپ پر آپ کو پیشاب اور پاخانہ ملے گا، اور جو چیز گندگی ہے، نجاست ہے، وہ کھانے کے لیے حرام ہے اسلام میں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ٹوائلٹ کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنے ساتھ میں پانی کا ٹمبلر، اداوۃ من ماء یعنی استنجی بہ، پانی کا ٹمبلر لے جاتے جس سے وہ اپنے آپ کو صاف کیا کرتے تھے۔ آپ بتاؤ، ثابت شدہ پروون چیزوں کو چھوڑ کر ان پروون سٹیٹمنٹس کے بیسس پر اتنی بڑی شخصیت کے اوپر اس طرح سے اعتراض اٹھانا، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بات ہمارے کرسچن بھائی بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ کرسچن سکولرز بتاتے ہیں کہ جیزس کرائسٹ کے بارے میں کچھ غیر مناسب چیزیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو گاسپل آف سینٹ تھامس میں دی ہوئی ہے، وہ چیز کو وہ نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ گاسپل آف تھامس کرسچن بائبل کے کینونیکل بکس میں سے نہیں ہے، میں شامل نہیں ہے، وہ لوگ اسے نہیں مانتے۔ یہ بات ہمارے ہندو بھائی بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ والمیکی رامائن کی جو 7 کانڈ ہے، اس میں جو 7واں کانڈ ہے اترا کانڈ، اس کے اندر رام کے بارے میں کچھ غیر مناسب چیزیں ملتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس اترا کانڈ کو نہیں مانتے ہیں کہ یہ اوریجنل والمیکی رامائن کا حصہ ہے۔ یہ بات کہی جاتی ہے، صحیح ہے غلط ہے وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اسلام میں ہم جب کسی حدیث کو ضعیف بولتے ہیں یعنی کہ ویک، یا موضوع بولتے ہیں یعنی کہ فیبریکیٹڈ، تو پروف کی بنیاد پر بولتے ہیں۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ ویب سائٹ دکھا رہا ہے، لیکن اب اس کی فیورٹ ویب سائٹ اسلام کیو ہے، جس کے اوپر کئی بار اس نے اعتراض اٹھایا ہے، وہ اب نہیں بتا رہا ہے۔ اور جو فیمس فتوا ویب سائٹ جو ٹاپ سرچ ریزلٹس میں سے ہے، اسلام ویب، وہ نہیں بتا رہا ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشاب پاک نہیں تھی۔ وہ یہ ویب سائٹ کو بتا کر کہہ رہا ہے کہ اس میں بہت دلیل دی ہوئی ہے، لیکن یہ ویب سائٹ نہیں بتا رہا ہے جو اس ویب سائٹ کے اٹھائے ہوئے سوالوں کا جواب 2011 سے پروف کے ساتھ دے چکی ہے۔ اسے فتوا شاپنگ کہتے ہیں۔ آپ بتاؤ کہ ایک گروپ کی غلط رائے کو اسلام کی ٹیچنگ کے طور پر پیش کرنا کیسا ہے؟ انہیں اس بات کو ایسے پیش کرنا چاہیے تھا کہ وہ مسلمز کے ایک گروپ کی رائے کے خلاف ہے، مسلمز کے ایک گروپ کی رائے کے خلاف ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اسلام کے خلاف ہے،
इसे एकेडमिक ऑनेस्टी कहते हैं। लेकिन ये लोग ये ऑनेस्टी नहीं रख सकते, क्यों मालूम है? क्योंकि उनका पूरा नैरेटिव कोलैप्स हो जाएगा कि इस्लाम गलत है। अब क्या होगा कि वो मुसलमानों के एक ग्रुप की राय के खिलाफ है। एक मिसाल से समझते हैं। एक ग्रुप है, उनकी वेबसाइट भी है, द फ्लैट अर्थ सोसाइटी, जो अपनी जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स, स्यूडो साइंटिफिक रिसर्च, थ्योरीज वगैरह के जरिए यह साबित करता है कि दुनिया चपटी है। अब अगर कोई इनकी मिसाल को देकर अपने फॉलोअर्स को कहे कि इससे साबित होता है कि साइंस गलत है, तो आप क्या कहोगे? आप ही कहोगे कि यह शख्स अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बना रहा है। क्यों? एक ग्रुप की राय को साइंस की राय पेश करके साइंस को रिफ्यूट करना, यह तो ऑनेस्टी नहीं है ना। अगर ये लोग इस्लाम के दुश्मन अपनी दुश्मनी में भी ईमानदारी रखें, तो जो टॉपिक्स में इन्हें इख्तिलाफ है, उनकी दुकान का 1/3 स्टॉक, 1/3 स्टॉक खाली हो जाएगा। और ये रूल अगर वो बनाए कि ज़ईफ और मौजू हदीस, झूठी और फेक बातों को बुनियाद बनाकर इस्लाम पे एतराज नहीं उठाएंगे, तो उनकी दुकान का और 1/3 स्टॉक खाली हो जाएगा। और जो बाकी 1/3 बचेगा, जेन्युइन सवाल, उनका हम लोग जवाब देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन बेवकूफी यहां खत्म नहीं होती है, आगे देखिए। As some of our wise men say, is the water of paradise. यानी जितने लोग जन्नत में जाएंगे मुसलमान, तो आपको जो पानी मिलेगा वो मोहम्मद साहब के का असल में वो पेशाब मुबारक होगा। यार जहन्नम में कम से कम ये पेशाब तो नहीं मिलेगा ना जुबैर साहब, पेशाब तो नहीं मिलेगा। आग एक बार झेल लेंगे यार, लेकिन ये पेशाब कौन पिएगा, आप बताओ। आप देखिए किस तरह अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। पहले तो ये बात किसी सही हदीस में नहीं है। ये कहां दिया हुआ है कि जन्नत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशाब पिलाई जाएगी? कहां दिया हुआ है? कहां दिया? चैलेंज है उनके लिए, लाओ लाओ, या तो अपॉलोजाइज करो या तो माफी मांगो। अब आइए देखते हैं इन सब हदीसों की एनालिसिस बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। ये लोग कहते हैं कि कोई तो इस्लामिक स्कॉलर है जिसने इस हदीस को मोतबर कहा है, रिलायबल कहा है। तो इस वजह से वो क्या कहते हैं कि हमें दोष नहीं दे सकते हैं, हम तो स्कॉलर को कोट कर रहे हैं। ये तो ऐसी मिसाल है जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, किसी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, डॉक्टर ने बेस्ट कोशिश की, इस वजह से उसे सजा नहीं दी जाती। इसे देखकर कोई डाकू जिसने मर्डर किया है वो कहता है वो डॉक्टर को सजा नहीं दी ना, इसलिए मुझे सजा नहीं दे सकते। हम इन इस्लाम के दुश्मनों से कहते हैं तुम इस्लाम को अटैक करने आए हो ना, तुम्हारे पास तो प्रूफ होना जरूरी है, तुम्हारे पास प्रूफ होना। हमारे स्कॉलर्स अगर मिस्टेक करते हैं ना, तो हम उनके साथ दलाइल शेयर करते हैं, वो एक्सेप्ट भी करते हैं, अपना ओपिनियन चेंज भी करते हैं। ये हमारा इंटरनल इशू है। जब तुम अटैक करने आए हो तो तुम्हारे पास इस्लाम को अटैक करने के लिए ठोस प्रूफ होना चाहिए, और प्रूफ नहीं है तो अपॉलोजाइज करना होगा। मैं प्रूफ दे रहा हूं, हदीस को क्यों ज़ईफ है प्रूफ दे रहा हूं। आइए पहली हदीस से शुरू करते हैं। इस पहली हदीस में आया है कि उम्मे ऐमन ने गलती से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशाब पी ली, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पेट में कभी दर्द नहीं होगा। लेकिन यह रिवायत मुनक़ते है, ज़ईफ है। इसकी सनद में रावी मिसिंग है, सनद में ब्रेक है। हुसैन बिन हुरैस जो रावी है, इमाम इब्न हजर कहते हैं कि यह 10वें तबके का रावी है, 12 तबकों में से 10वें तबके का रावी है। आप देखेंगे कि तबे ताबईन के बाद के जमाने का रावी है, और वो बयान कर रहे हैं याला बिन अता जो ताबई है, और जो 10वें तबके के रावी है उनकी ताबईन से मुलाकात ही नहीं हुई। यानी कि कम से कम एक रावी मिसिंग है, और रावी जब मिसिंग है तो यह बात साबित नहीं होती है चेन बहुत मजबूत हो लेकिन बीच में से टूटी हुई है, पानी का पाइप बहुत अच्छा लगा हुआ है लेकिन बीच में कनेक्शन टूटा हुआ है, इलेक्ट्रिक वायर बहुत अच्छी क्वालिटी का है लेकिन बीच में कनेक्शन कट है, तो क्या करंट पहुंचेगा या पानी पहुंचेगा? समझने की बात है, यह चीज साबित शुदा नहीं है। यह सेम बात इस दूसरी हदीस में भी दी हुई है, लेकिन यह हदीस सख्त ज़ईफ है क्योंकि इसकी सनद में एक मतरूक रावी है। मुहद्दिसीन ने इस रावी की हदीसों को तर्क कर दिया था, यानी कि छोड़ दिया था। यह तीसरी हदीस देखिए। इस हदीस में आता है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बांदी से कहा कि लक़द इह्तज़रत मिनन नारि बिहिज़ारिन, यह पेशाब तुम्हारे लिए जहन्नम की आग से ढाल होगी। शेख अलबानी कहते हैं कि यह जो आखिरी हिस्सा है इस हदीस का, यह शाज है, और यह रिवायत जो मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में आती है इब्न जुरैज से, वो हदीस मुरसल है। मतलब कि एक आखिरी हिस्सा ज़ईफ है, गैर साबित शुदा है। यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके पेशाब पीने के ताल्लुक से कोई फजीलत साबित नहीं है। ऊपर का हिस्सा अगर सही भी हो तो बांदी ने वो गलती से पिया, वो बेड पैन जैसा मामला था, उसने गलती से पिया, और गलती इस्लाम के अंदर माफ है। लेकिन इस बारे में दलील की रोशनी में अगर आप सही बात जानना चाहते हैं
तो शेख शोएब अर्नौत ने अबू दाऊद की अपनी चेकिंग में बताया है कि इस हदीस का जो शुरू का हिस्सा है वो भी साबित नहीं है, यानी कि पूरी की पूरी हदीस ज़ईफ है, क्योंकि इमाम ज़हबी ने हुकैमा बिन्त उमैमा, ये राविया जो इस हदीस के अंदर है, उनके बारे में मीज़ानुल एतदाल में लिखा है कि ये राविया गैर मारूफा है। इमाम इब्न हजर ने कहा ला तुरफ, यानी कि वो जानी जाती नहीं है, और इसे सिर्फ इमाम इब्न हिब्बान ने मोतबर कहा है। और मुहद्दिसीन के नजदीक अगर इमाम इब्न हिब्बान अकेले होते हैं किसी को मोतबर कहने में, तो वो बात काफी नहीं है, वो मानी नहीं जाएगी। मतलब कि ये हदीस पूरी की पूरी ज़ईफ है, ये बात ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर भी अगर कोई आर्ग्यू करता है कि नहीं, तो शेख अल्बानी का जो व्यू है कि लास्ट लाइन जिसमें फजीलत आई है वो ज़ईफ है, वो भी एक व्यू है। जिस किसी तरह से आप देखो, पेशाब पीने की कोई फजीलत साबित नहीं होती, पेशाब पीने के ताल्लुक से कोई बात यहां नहीं मिलती। कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर लाइन नहीं लगी होती थी कि लोग आए हैं पेशाब लेने के लिए। आपके पास कोई एक सही हदीस मौजूद नहीं है जिसके अंदर यह बात दिया हो कि सहाबा पिया करते थे। ये चौथी हदीस भी बताई जाती है जिसमें दिया है अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु के घर के कुएं में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब किया, लेकिन यह हदीस ज़ईफ है, गैर साबित शुदा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक रावी है उबैदुल्लाह बिन नुमान अल-मिनकरी, जिसकी कोई तौसीक नहीं मिलती, यानी कि वो रावी अननोन है। बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम तो ये है कि जो नहाने की जगह है, जहां ठहरा हुआ पानी हो, ऐसी जगहों पर जहां पे लोगों को तकलीफ हो सकती है, वैसी जगहों पर पेशाब उल्टा ना किया जाए। पाखाना खाने के बारे में यह हदीस बताई जाती है जिसमें आता है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु ने एक इरादा किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाखाना वो खाएं, लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि यह हदीस ज़ईफ है। बल्कि यहां तक आके इमाम ज़हबी ने अपनी किताब मीज़ानुल एतदाल में इसी हदीस का हवाला देकर कहा है कि इसहाक बिन सल्त जो रावी है वो सख्त मुनकर रिवायतें बयान किया करता था इमाम मालिक से, और उन्होंने कहा है कि इसकी पूरी सनद अंधेरे में है। आप इसमें देख सकते हो कि कई अननोन रावी है। पूरे उलमा की कमेटी ने भी इस हदीस को ज़ईफ में शुमार किया है। आखिर में एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ये सब बातें इतनी सिंपल है, जो बातें मैंने कही ये कोई बहुत बड़े जीनियस को समझ में आएगी ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें हैं। ये लोगों को ये बातें क्यों नहीं पता है, ये लोगों को ये बातें समझ में क्यों नहीं आती है? तो हकीकत तो ये है कि उनकी आंखें अंधी नहीं है, उनके दिल जैसे कि अंधे हो जाते हैं, उनके उस तासुब और उस नफरत की वजह से। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हम सबको इंसाफ से काम लेना चाहिए, हम सबको सच्चाई की तलाश करनी चाहिए, जो सच है और सही बात है उसे कबूल भी करना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ये अंधी नफरत को खत्म करिए, आइए हम सब सच्ची बात को देखकर उसे कबूल करें। शुक्रिया। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।